Hello, children. Yes, in our previous video, we started chapter 3 of your English course book, and the name of the chapter is Bake a Cake. Bake a cake. And as you can see, there is a picture of cake on your screen, and the picture looks really delicious, and मन कर रहा है कि इसको खा जाए, है ना? And we started that chapter, and that chapter was about two sisters who wanted to bake a cake for their father's birthday. They wanted to bake a cake to make their father's birthday special. So today we will complete that chapter. We will continue and we will complete that chapter. So let's move on to the page of your English course book, chapter number 3, Bake a Cake. Children, this is chapter 3 of your English course book, Bake a Cake. And we started this chapter in the previous video. Let's have a quick recap of what we studied, what we have read, and then we will continue the chapter. Children, we read that Mr. Ali had his birthday. It was Mr. Ali's birthday, and Mr. Ali had two daughters. मिस्टर अली का बर्थडे था और उनकी दो बेटियां थी एंड देयर नेम वाज शिफा एंड निदा. दोनों लड़कियों का नाम क्या था? एक का नाम शिफा था और दूसरी का नाम निदा था. एंड द टू गर्ल्स दे वांटेड टू मेक their father's birthday special for him, and so they decided to bake a cake for him. So what they did, they took their mother's recipe book, and I told you meaning of recipe book. It's a book that contains the method of preparing various dishes. So they took their mother's recipe book, and they both went through all the cake recipes. There were recipes of different types of cakes in that recipe book. There were recipes for chocolate cake, vanilla cake, strawberry cake, carrot cake, walnut cake, and a raisin cake. But since both the girls, both the sisters, they liked pink color, they liked the color pink, so they decided to bake a strawberry cake because strawberry is pink. The color of strawberry is pink, and if they will make the strawberry cake, it will be of pink color. So they decided to bake a strawberry cake. For making the strawberry cake, they had to follow the recipe properly. They had to act accordingly as it is written in the recipe book. So they started making the cake, and they took the ingredients for the cake. बच्चों, हमने पढ़ा था कि मिस्टर अली का बर्थडे था और उनकी जो दो बेटियां थी शिफा और निदा, वो अपने पापा का बर्थडे उनके लिए स्पेशल करना चाहती थी, उनके लिए स्पेशल बनाना चाहती थी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पापा का बर्थडे स्पेशल कैसे बनाएगी. उनके लिए खुद से वो केक बनाएंगी, उनके लिए केक बनाकर. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी का जो है ना रेसिपी बुक लिया. मैंने बताया था मीनिंग रेसिपी बुक, वो ऐसी कॉपी होती है, बुक होती है जिसमें अलग अलग डिश बनाने की मेथड लिखा होता है, उसमें तरीका लिखा होता है. तो मम्मी की जो रेसिपी बुक थी उसमें कई तरह के केक बनाने की रेसिपीज थी. कौन कौन से केक बनाने की रेसिपी थी? चॉकलेट केक, वनीला केक, स्ट्रॉबेरी केक, कैरेट केक, वॉलनट केक एंड रेजिन केक. आपको मैंने बताया था चॉकलेट केक कैसा होता है, जिसमें कि चॉकलेट, लिक्विड चॉकलेट डाला जाता है या चॉकलेट चिप्स डाला जाता है उसमें. वनीला केक में वनीला का एसेंस डाला जाता है, और स्ट्रॉबेरी केक में या तो स्ट्रॉबेरी का पल्प होता है या जूस होता है या दोनों ही होते हैं. और कैरेट केक में कैरेट होगा, कैरेट का जूस. वॉलनट केक में क्या होगा, मैंने बताया था वॉलनट एक ड्राई फ्रूट होता है, तो या तो क्रश करके डालते हैं या उसके पीसेस डाल के बना सकते हैं. और रेजिन केक मतलब किशमिश, रेजिन मतलब किशमिश, तो किशमिश के केक में किशमिश होगा. तो इतने तरह के केक्स की रेसिपी थी मम्मी के रेसिपी बुक में. और दोनों सिस्टर्स को, दोनों लड़कियों को
स्ट्रॉबेरी बहुत उनको पिंक कलर बहुत पसंद था। क्या पसंद था? पिंक कलर। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये सोचा कि वो स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉबेरी पिंक कलर का होता है और वो जब केक बनाएंगी तो केक भी पिंक कलर का बनेगा। इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगी। और स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए उनको जो रेसिपी थी, उसको बनाने का जो मेथड था, तरीका था, वो उनको केयरफुली फॉलो करना था, उसको अकॉर्डिंगली उसके चलना था कि जो जो लिखा था। बच्चों, मैंने बताया था आपको कि कोई भी डिश बनाने के लिए उसका मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट मतलब कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। वो डिश बनाने में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसका प्रोपोर्शन बहुत सही होना चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब उसकी मात्रा, कि कौन सी चीज़ कितनी चाहिए। कोई भी डिश, नॉर्मल आप खाना जो मम्मी बनाती है उसके लिए भी जो है कौन सा सामान उस खाने की चीज़ में कितना पड़ेगा वो ज़रूरी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक नॉर्मल सब्जी भी बनाती है मम्मी, तो उसमें नमक कितना पड़ेगा उसका भी एक प्रोपोर्शन होता है, उसका भी एक क्वांटिटी होती है। अगर मम्मी कोई दूसरी डिश बना रही है, दम आलू बना रही है, पालक पनीर बना रही है, तो उसमें होगा ना कि कितना पालक, कितना पनीर, या कितना आलू, कितना मसाला, है ना। हर चीज़ में क्वांटिटी बहुत ज़रूरी होती है कि कौन सी चीज़ की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। और बेक तो ऐसी चीज़, सॉरी, केक तो ऐसी चीज़ है कि अगर कुछ भी उसमें अगर थोड़ा भी आगे कम ज़्यादा हो जाए तो केक का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, केक का टेस्ट भी ख़राब हो सकता है, और केक हो सकता है आपका सॉफ्ट और फ्लफ़ी ना बने। तो किसी को अच्छा लगेगा अगर केक सॉफ्ट नहीं हो या टेस्टी ना हो, पत्थर जैसा टाइट हो जाए, नहीं अच्छा लगेगा ना। केक तो हमेशा सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए उनको रेसिपी को बहुत केयरफुली फॉलो करना था। So they need to be very careful with the measurement or with the proportion of the ingredients required for the cake. So they took Nida took 4 eggs, and then she beat the egg properly. Beating the egg, I told you, mixing it फास्ट विद स्पून और विद बीटर। एग बीटर भी मिलता है, एग बीटर से भी आप कर सकते हो। सो देन शिफा टुक 2 cups ऑफ फ्लोर। शिखा ने आटा कितना लिया? 2 कप। 2 कप आटा लिया। निदा ने 4 eggs लिए, उसको बीट किया, एंड शिफा ने 2 cups आटा लिया, फ्लोर लिया, फ्लोर मतलब आटा। एंड देन 1 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर इज एडेड टू दैट फ्लोर। उस आटे में 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाया। And I told you baking powder is a kind of powder that makes the batter of the cake comes up, उसको फुला देता है, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बनाने में काम आता है। Then she mixed the two very well. Then next, what she mixed 1 cup of butter, 1 cup butter and 2 cups of sugar. She mixed 1 cup of butter and 2 cups of sugar together, and to this Nida added the flour and then the eggs. ये जो मिक्सचर था, 1 कप बटर और 2 कप शुगर का, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद निदा ने उसमें क्या डाला? निदा ने उसमें वो जो आटा था जिसमें कि बेकिंग पाउडर मिला हुआ था वो डाला, और फिर जो बीट किया हुआ एग था, एग्स थे, वो डाल दिया। ठीक है। देन शिफा एडेड अ कप ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए, वो था स्ट्रॉबेरी का जूस। तो 1 कप उसमें स्ट्रॉबेरी जूस डाला, और फिर उसको पूरे जो मिक्सचर था, जो पूरा बैटर था, उसको खूब अच्छे से मिक्स किया। स्टर्ड मतलब आप जब स्पून को उसमें घोल में, बैटर में जब गोल गोल घुमाते हैं, उसको बोलते हैं स्टरिंग। तो अच्छे से स्टर किया और मिक्स किया। यहाँ तक हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नाउ लेट्स रीड फर्दर। Nida chose a heart-shaped cake tin. अभी निदा ने क्या किया? शी चोज अ हार्ट शेप्ड केक टिन। बच्चों, जो केक बनाने के लिए उसका टिन भी आता है जिसमें आप उस पूरे बैटर को पोर करते हो, उसमें आप डालते हो, तो वो अलग अलग शेप्स का होता है। कोई स्क्वायर होता है, कोई राउंड होता है, कोई ओवल होता है, कोई हार्ट शेप होता है। तो निदा सिलेक्टेड हार्ट शेप्ड केक टिन। वो केक का टिन बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर केक डाल के, केक का जो बैटर उसमें अंदर डाल के फिर उसको बेक करने के लिए अवन में डालते हैं। तो निदा ने कौन सा शेप लिया? हार्ट शेप्ड। कैसा होता है हार्ट शेप? समथिंग लाइक दिस।
ऐसा शेप का टिन, ठीक है। ओ, नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली। वो टिन होता है, शायद ऐसा कुछ होता है, समथिंग लाइक दिस। और इसके अंदर फिर केक को डाला, ठीक है। तो हार्ट शेप्ड केक टिन लिया एंड शी पोर्ड द मिक्सचर इनटू इट। वो टिन लिया हार्ट शेप का और उसके अंदर फिर जो मिक्सचर रेडी किया था, एग्स, फ्लोर, व्हीट फ्लोर और स्ट्रॉबेरी जूस और बटर और शुगर, ये सारा जो मिक्सचर था, दैट शी पोर्ड इनटू दैट टिन एंड पुट इट। पोर करना मतलब डाल देना। पोर का मतलब होता है किसी चीज को, एक चीज को से दूसरी चीज में डाल देना, एक से दूसरे में पोर कर देना, ठीक है। देन she put it she and put it in the oven. Now what is this oven? oven होता है जिसमें कि केक को बेक करते हैं। केक को जो भी बेक करना हो, आप जो भी हम डिशेस बेक करके बनाते हैं वो ओवन में डालते हैं। आजकल तो माइक्रोवेव में भी होता है काम, बट जो बेकिंग का काम होता है वो बेसिकली ओवन में करते हैं। तो केक को या जो बेक करने वाली चीज़ें हैं उसको ओवन में बेक किया जाता है, इसलिए वो पोर करने के बाद मिक्सचर को हार्ट शेप्ड टिन में पोर करने के बाद what she did, she put the oven in the she put the mixture in the oven. She put the mixture in the oven to bake, ताकि वो बेक हो जाए। Okay, 20 minutes later, 20 minutes later, a delicious aroma filled the kitchen. Now, what is delicious? Delicious means tasty, very tasty. An aroma is called smell of beautiful smell, tasty smell, sweet smell. जो खुशबू जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अच्छी सी खुशबू, स्वीट स्मेल को बोलते हैं अरोमा। ये खाने पीने की चीज़ों से आता है और कभी कभी जो अच्छे खूब जो सुंदर फूल होते हैं, खुशबू वाले फूल होते हैं, उसमें से भी आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अरोमा। अरोमा इज स्वीट स्मेल। तो 20 मिनट्स जब हो गया अवन में रखे हुए केक को, आफ्टर 20 मिनट्स, तुरंत तो आएगा नहीं, तुरंत तो बेक नहीं होगा ना, बेकिंग टेक्स सम टाइम। So after 20 minutes, delicious aroma, delicious sweet smell, tasty sweet smell filled the kitchen. किचन में अच्छी खुशबू आ गई। किसकी खुशबू थी? केक के बेक होने की। They opened the oven to find a yummy cake for their loving father. और 20 मिनट्स के बाद जब उन्होंने अवन को खोला, अवन को ओपन किया, तो व्हाट दे फाउंड अ यमी केक। एक बहुत अच्छा डिलिशियस केक था। किसके लिए था? फॉर देयर लविंग फादर, उनके प्यारे पापा के लिए। उसमें बहुत ही यमी सा केक बन के रेडी था। Together they decorated it with strawberry jam and cream and set it on a lovely tray. अब क्या किया दोनों ने मिलकर, because both the sisters together they made this cake. The strawberry cake was made by both the sisters. They both took part in preparation. So it was their combined effort. तो दोनों ने क्या किया? दे डेकोरेटेड इट विथ स्ट्रॉबेरी जैम। वो केक स्ट्रॉबेरी था, फिर उसको सजाया। केक को ऐसे नहीं ना निकाल के दे देते हैं खाने के लिए, उसको डेकोरेशन भी ज़रूरी होता है। सो दे डेकोरेटेड इट विथ स्ट्रॉबेरी जैम बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रॉबेरी केक। सो दे डिसाइडेड दैट इट शुड बी डेकोरेटेड विथ स्ट्रॉबेरी। सो दे पुट स्ट्रॉबेरी जैम ओवर इट and cream also, and after that they kept it on a lovely tray. After that they took it to their father. फिर उसको पापा के पास वो लेके गए उस ट्रे को जिसमें वो केक था, एंड विश्ड हिम फॉर हिज बर्थडे। फिर उनके पापा का ही बर्थडे था, सो दे विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे। उन्होंने अपने पापा को हैप्पी बर्थडे विश किया और सामने उन्होंने उस केक को रखा। व्हाट अ परफेक्ट वे टू स्टार्ट द डे। व्हाट अ परफेक्ट डे टू स्टार्ट द डे। मतलब इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता किसी अच्छे दिन की शुरुआत करने का। किसी का बर्थडे हो और वो आँख खोले और उसके सामने एकदम डिलिशियस यमी केक हो, तो व्हाट कैन बी मोर परफेक्ट डे दैन दिस।
है ना। पापा को कितनी खुशी हुई होगी कि उनके दोनों डॉटर्स ने इतना यमी, इतना टेस्टी ब्यूटीफुल केक खुद से बेक करके उनके सामने बर्थडे के दिन सुबह सुबह लाकर दिया। तो फादर मस्ट बी वेरी हैप्पी, कोई भी खुश होता। सो इट वॉज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट अ बर्थडे और द डे। So children, this was the chapter. This was the chapter, and what do we learn from this chapter? What is the message of this chapter? That what? When we love somebody, we try to make that person happy in different way, and we try our best to do something for him or her. And if it is a birthday, then something special must be done to make that person happy, to make that person feel happy. पापा, पेरेंट्स तो हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। पेरेंट्स ऑलवेज डू समथिंग, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर देयर children, anything for their child. And children also should acknowledge this, उनको भी लगना चाहिए और उन्हें भी अपने पेरेंट्स का कोई ना कोई दिन उनको स्पेशल बनाना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो भी खुश हों। और उन्होंने देखो, जैसा कि इस चैप्टर में है, दोनों डॉटर्स ने किस तरह से अपने पापा का दिन को उन्होंने स्पेशल बना दिया। अभी पापा कभी भूलेंगे ये बात? कभी नहीं ना। उनको हमेशा याद रहेगा कि उनकी बेटियों ने उनके लिए एक डिलिशियस केक उनके बर्थडे के दिन दिया था, एंड मेड हिज डे स्पेशल एज वेल एज मेमोरेबल। स्पेशल भी दिन बना दिया और यादगार भी बना दिया कि जिसे वो कभी भी ना भूलें। सो दिस वॉज द चैप्टर, एंड वी विल डू द comprehension of this chapter now. Comprehension part A. The steps for baking a strawberry cake are all mixed up. Can you number them correctly in the given boxes? Now what you have to do here, as you can see, few sentences are written below. These sentences are regarding the steps for making a strawberry cake. ये जो नीचे सेंटेंस लिखे हैं एक्चुअली में वो स्टेप्स हैं स्ट्रॉबेरी केक बनाने के, लेकिन सारा ऊपर नीचे है, सब मिक्स्ड अप है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नंबर देम करेक्टली इन द गिवन बॉक्स। सामने जो बॉक्स दिया है उसमें आपको सही नंबर, सही ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करना बताना है, कौन सा पहले, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। यू हैव टू अरेंज इट्स नंबर करेक्टली इन द बॉक्स गिवन, जो सामने सामने बॉक्स दिया है। ये सारा मिक्सअप है। सो हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने समझा है, और हमें पता है कि दोनों सिस्टर्स ने किस तरह से स्ट्रॉबेरी केक बनाया था, पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, है ना। वी नो द ऑर्डर, सो वी हैव टू नो नंबर इट। लेट्स रीड द सेंटेंसेस फर्स्ट। लेट्स रीड ऑल द सेंटेंसेस फर्स्ट। पहले सारे सेंटेंस हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसको अरेंज करेंगे। पहला क्या है, देखो, add the strawberry juice and mix well. Add the strawberry juice and mix well. स्ट्रॉबेरी जूस डालना है और उसको खूब मिक्स करना है। ऑफ कोर्स ये तो पहला स्टेप होगा नहीं, पहले थोड़ी ना स्ट्रॉबेरी जूस डाल दिया था, है ना। नेक्स्ट सेंटेंसेस, बीट द एग्स वेल। अंडों को खूब अच्छे से फेंटने को बोला जा रहा है, ठीक है। ये कब करना है, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट होगा, है ना। First the eggs were beaten up. Let's read the next sentence, then we will decide which one will come first and which will come second. Number third sentence is beat the butter and sugar. अभी sugar and butter को खूब आपस में मिलाना है. This is the meaning of the sentence. Then mix the flour and baking powder. आटा और बेकिंग पाउडर को मिक्स करना है. Pour the cake mix into a tin. केक का जो मिक्सचर है उसको टिन में पोर करना, टिन में डालना है. Add the flour and then eggs to the butter and sugar. आटा और फिर अंडा, एग्स जो हैं उसको बटर और शुगर वाले में जो मिक्सचर है उसमें डालना है. And next is bake it in a hot oven for 20 minutes. और फिर गरम अवन में उसको 20 मिनट्स तक पकाना है, उसको बेक करना है. These are the sentences. Now let's arrange them properly. हम शुरू से करते हैं कौन सा पहले होगा. तो सबसे पहले निदा ने क्या किया था, she
बीट द एग्स वेल, सबसे पहले 4 अंडे लिए थे उसको बीट किया था, सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, बीट द एग्स वेल। उसके बाद सेकेंड स्टेप उन्होंने क्या किया था, शिफा ने क्या किया था, मिक्स द फ्लोर एंड द बेकिंग पाउडर, आटा और उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाया था, है ना। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, मिक्स द फ्लोर एंड बेकिंग पाउडर, ये सेकेंड स्टेप है। उसके बाद क्या किया था, थर्ड स्टेप था बीट द बटर एंड शुगर, उसके बाद 1 कप बटर और 2 कप शुगर उन्होंने मिक्स किया था, है ना। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या किया था, एड द फ्लोर एंड देन एग्स टू द बटर एंड शुगर, जो बटर और शुगर का मिक्सचर था उसमें उन्होंने आटा और फिर एग्स को मिलाया था, है ना। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप। उसके बाद क्या किया था, ये सारा में क्या मिलाया था, एड द स्ट्रॉबेरी जूस एंड मिक्स वेल, इन सब के बाद फाइनली उन्होंने स्ट्रॉबेरी जूस मिलाया था और फिर उसको मिक्स किया था। ठीक, सारा मिक्सचर रेडी है। नाउ पोर द केक मिक्स इनटू अ टिन, उसके बाद एक टिन लेना अपनी चॉइस के शेप का और उसमें फिर उस केक के मिक्स को पोर किया। बेक इन अ हॉट ओवन फॉर 20 मिनट्स, उसके बाद उसको अच्छे से बेक करना है। सॉरी, ये 5 है, ये 6 है और उसके बाद ये 7। बेक इन अ हॉट ओवन फॉर 20 मिनट्स, उसके बाद इसको 20 मिनट्स तक इसको बेक करना है। दिस इज द 7th वन। क्लियर, नाउ इट्स क्लियर। पहला क्या था, बीट द एग्स वेल, beat the eggs well, then mix the flour and baking powder, then beat the butter and sugar, then add the flour and then eggs to the butter and sugar, add strawberry juice and mix well, pour the cake into a tin and bake in a hot oven for 20 minutes and the cake is ready. Done. Next, answer the following questions. Answer the following questions. Now, some questions are given and you have to write the answers in the space provided and as well as in the notebook. आप इसे अपनी कॉपी में भी करेंगे और इसे अपने बुक में भी करेंगे, ठीक है। Why did Nida and Shifa wish to bake a cake? The question is, why did Nida and Shifa wish to bake a cake? वो क्यों केक बेक करना चाहती थी, क्यों करना चाहती थी? They wished to bake a cake because they wanted to make their father's birthday special for him, है ना। निदा एंड शिफा विश्ड टू बेक, ये विश क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा। निदा एंड शिफा विश्ड टू बेक अ केक because they wanted to make their father's birthday special for him, and you can see it is written here, they wished to make it special for him. They wanted to bake a cake, they wished to bake a cake because they wanted to make it special for him, they wanted to make it special for their father, they wanted to make that day special for their father. Got it? Shall I repeat? Nida and Shifa wished to bake a cake to make it special day for their father, to make their father's birthday special for him, to make their father's birthday special for him. Next, name the different types of cakes as mentioned in the lesson. Children, while reading the recipe book of their mother, they came across the recipes of various cakes. हमें बताना है कि इस जो केक बुक, इस चैप्टर में जो अलग अलग टाइप्स के केक्स बताए गए हैं उनके नाम आपको बताने हैं। और वो कौन से केक थे जो मम्मी की रेसिपी बुक में तरह तरह के केक्स की रेसिपी थी ना, वही नाम बताने हैं। जिन जिन केक्स की रेसिपी थी तो वो केक के नाम बताने हैं। यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द different types of cake mentioned in mother's recipe book.
So what were the names of those cakes? Let's go through. It's written here. See, chocolate cake, vanilla cake, strawberry cake, carrot cake, walnut cake, and a raisin cake. How many cakes were there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recipe of 6 cakes were there. 6 different types of cakes were there in mother's recipe book. So we'll write here. Name the different types of cakes as mentioned in the lesson. Chocolate cake, vanilla cake, strawberry cake, carrot cake, walnut cake, and raisin cake. Okay, so you have to write the names of these types, these cakes. Number 3. Which cake would you like to bake? Now, if you were given chance to bake a cake, अगर आपको मौका दिया जाए कोई केक बेक करने का, तो आप कौन सा केक बेक करना चाहोगे? नॉट नेसेसरली जो मेंशन है आपकी बुक में, जो केक्स मेंशनड है, ज़रूरी नहीं है कि आप वही केक का नाम लो. इट इज़ अप टू यू विच केक वुड यू लाइक टू बेक. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा केक बेक करना चाहते हो. ठीक है, ये नहीं कि जो बुक में लिखा है उसी में से आपको सिलेक्ट करना है. इफ यू विश टू राइट सम अदर केक यू कैन राइट, बट इट इज अप टू यू. Which cake would you like to bake? This is your choice. This you have to do it yourself, because I don't know which cake would you like to bake. But if I have to bake a cake, I would bake pineapple cake. I like pineapple cake very much. So अगर मुझे bake करना होगा, I would bake a pineapple cake. Okay. बट ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा केक बेक करना चाहोगे. मोस्ट ऑफ द पीपल दे लाइक चॉकलेट केक वेरी मच. तो हो सकता है मैक्सिमम बच्चे चॉकलेट केक लिखें. हो सकता है सबको किसी किसी को स्ट्रॉबेरी केक ज़्यादा पसंद है तो वो स्ट्रॉबेरी केक ही बेक करें. और किसी किसी को हो सकता है कि ये जो इसमें मेंशन्ड है वनीला वाला केक, वनीला आइसक्रीम जिसको पसंद है उसको वनीला केक भी अच्छा लगेगा, है ना. तो अपनी अपनी चॉइस है ये. तो ये आंसर आपको खुद मेंशन करना है कि अगर आपको केक बेक करना हो तो आप कौन सा केक बेक करोगे. हो सकता है आप भी किसी के लिए बेक करना चाहो, पापा के लिए, मम्मी के लिए, तो उनकी चॉइस का भी आप बेक कर सकते हो कि उन्हें कौन सा केक पसंद है, आप वो केक भी बेक कर सकते हो. ठीक है, तो आई पर्सनली वुड प्रेफर पाइनएप्पल केक. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What were the things required for baking the cake? अभी केक बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत थी एज पर द चैप्टर. इस चैप्टर में जो, इस लेसन में जो लिखा है, इसके हिसाब से केक को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है. वाई एज पर द चैप्टर? बिकॉज आपको कोई दूसरा केक बनाना होगा तो फिर आपको इंग्रेडिएंट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे ना. अगर मुझे पाइनएप्पल केक बनाना होगा तो आई वुड नीड पाइनएप्पल जूस इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉबेरी जूस. अगर मुझे चॉकलेट केक बनाना होगा तो आई वुड नीड चॉकलेट, लिक्विड चॉकलेट फॉर दैट. अगर मुझे वनीला केक बनाना होगा तो आई वुड नीड वनीला एसेंस. बस बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू मेंशन द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग द केक. तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत इस लेसन में पड़ी थी. सारे इंग्रेडिएंट वही रहेंगे, सिर्फ जो आपका फ्लेवर वाला जो चीज़ होगा वो चेंज हो जाएगा. लाइक इस चैप्टर में स्ट्रॉबेरी केक है तो स्ट्रॉबेरी का जूस डाला. अगर दूसरा कोई केक बनाना है तो वो डालना होगा और स्ट्रॉबेरी वाला रिमूव करना होगा. दैट इज़ द डिफरेंस. सो लेट्स फाइंड आउट what were the things that were required. सो फर्स्ट वन वॉज एग्स. सबसे पहले क्या था, एग्स चाहिए थे, है ना. फिर क्या था, फ्लोर था. फिर क्या था, बेकिंग पाउडर था, है ना, बेकिंग पाउडर राइट हियर. फिर क्या था, बटर था, शुगर था, बटर एंड शुगर. और क्या था, स्ट्रॉबेरी जूस था. स्ट्रॉबेरी जूस, है ना. और क्या था, बस एग्स,
flour, baking powder, butter, sugar and strawberry juice. और कुछ चाहिए था? Yes. For baking the cake we need oven. तो oven चाहिए and केक टिन भी चाहिए जिसमें कि केक को पोर कर सके, केक के मिक्सचर को पोर करने के लिए केक का टिन चाहिए. सो केक टिन वाज आल्सो रिक्वायर्ड एंड oven फॉर बेकिंग द केक. सो अपार्ट फ्रॉम इंग्रेडिएंट द एडेड थिंग्स वर केक टिन एंड oven. ये भी चीज चाहिए थे फॉर बेकिंग द केक. सो यू विल राइट eggs, flour, baking powder, butter, sugar, strawberry juice, केक टिन एंड oven. ये सारी चीजें चाहिए फॉर बेकिंग द केक. क्लियर? So I think we have done with this. We have done the comprehension part A and comprehension part B, isn't it? We have completed this and you have to do this. This you have to do in the book. This you have to do it in the book, but question answers you will do it in the notebook. And rest of the exercise we will do in the next video. We'll do in the next video rest of the exercises. So with this we will stop here and we'll continue it in the next video. Okay, thank you.